This is pre-labor rupture of membranes. Pre-labor rupture of membranes. Membranes rupture after 37 weeks, but before the process of labor begins. तो लेबर से पहले रप्चर हो रही है, but after 37 weeks. उसको बोलते हैं pre-labor rupture of membranes. Pre-labor rupture of membranes was earlier used to be called as premature rupture of membranes and is currently changed to pre-labor rupture. Preterm pre-labor rupture of membranes, that is PPROM, is when membranes rupture at less than 37 weeks of pregnancy. So 37 weeks से पहले अगर रप्चर करिए तो PPROM प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और 37 वीक्स से बाद अगर रप्चर कर रही हैं तो PROM. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स? हम इसको ना प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ही बोलेंगे, ठीक है. प्रीवियस हिस्ट्री है अगर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की या PPROM की, इन्फेक्शन है अगर तो रप्चर कर सकती है मेम्ब्रेन्स. एब्रप्शियो प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा में एब्रप्शियो है तो मेम्ब्रेन्स भी रप्चर कर सकती हैं. ट्रोमा, एब्डोमिनल ट्रोमा हो गया तो रप्चर कर सकती हैं. स्मोक कर रहा है पेशेंट, मतलब कर रही है पेशेंट. ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है मेम्ब्रेन्स की, जैसे कि ट्विन्स है अंदर तो ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, या पॉलीहाइड्रेमनियोस के कारण ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है. क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? द डायग्नोसिस ऑफ रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स इज मेड क्लिनिकली. ए प्रेग्नेंट वुमन presenting with history of sudden gush of fluid from the vagina, which is a typical history, leading to soaking of her clothes, must warrant suspicion of PROM or PPROM. The fluid is described as either clear or pale yellow by the patient. First step in examination is sterile per speculum examination. Per vaginal examination is contraindicated. Per speculum examination has to be done because per vaginal examination can lead to infections. On sterile per speculum examination, we see pooling of fluid in the vaginal vault, fluid leaking from the cervical os. ठीक है, this is the first step in examination. The above mentioned findings are diagnostic of rupture of membranes. Patient is asked to cuff, perform a Valsalva maneuver, or the uterine fundus is pushed from above if the pooling of fluid is not visible. A per vaginal examination increases the chances of chorioamnionitis and hence must not be performed. If in doubt, then ultrasound can be performed. On per speculum examination, if there is a doubt, then we can do ultrasonography, and on ultrasound, we will see oligohydramnios because there is leaking of fluid. Oligohydramnios is supportive in the diagnosis of ruptured membrane. Other findings which are noted on per speculum examination are dilatation of the cervix, and we have to rule out cord prolapse as well. ठीक है, तो क्योंकि अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर कर गई हैं तो कोड प्रोलैप्स भी हो रखा हो सकता है, तो उसको भी रूल आउट करते हैं स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे. इन सम इंस्टेंसेस द एंटायर मेम्ब्रेन्स मे नॉट बी रप्चर्ड एंड द डिस्चार्ज इज ड्यू टू हाई लीक फ्रॉम अ स्मॉल ब्रेक इन द एमनियोटिक मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो considered as PROM or PPROM and can be confused with vaginal discharge or urination. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज है, यूरिन है, या फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि रप्चर के कारण आ रहा है. सो एमनियोटिक फ्लूइड और यूरिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए द हेड ऑफ द फीटस. अब यूरिन क्यों आ रहा हो सकता है एक प्रेग्नेंट फीमेल में ड्रॉप बाय ड्रॉप? वो आता है क्योंकि फीटस का हेड इरिटेट करता है ब्लैडर को, विच कैन लीड टू इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी. डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन एमनियोटिक फ्लूइड एंड यूरिन आर एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑर्डरलेस and urine has a typical odor. If the leaking stops after emptying the bladder, it is suggestive of urine. If the leaking continues, it is suggestive of amniotic fluid. Vaginal discharge. Vaginal discharge को कैसे amniotic fluid से differentiate करेंगे? pH से. The pH of amniotic fluid is alkaline, that is 7 to 7.5. The pH of vaginal discharge is acidic, that is 3.5 to 4.5. The tests to differentiate amniotic fluid and vaginal discharge. ये तो pH था. कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं जैसे निट्राजिन पेपर टेस्ट, विच इज़ लाइक अ लिटमस पेपर. इफ इट इज अल्कलाइन दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, इट टर्न्स ब्लू, एंड इफ इट इज एसिडिक देन इट टर्न्स पिंक. फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, मतलब पेपर ब्लू टर्न कर सकता है इवन इफ द फ्लूइड वॉज नॉट एमनियोटिक फ्लूइड. कब होगा ऐसा? जब द फ्लूइड वॉज ब्लड, और इफ द फ्लूइड वॉज सीमन तो भी अल्कलाइन है वो भी, तो दैट विल बी फॉल्स पॉजिटिव. फर्न टेस्ट कर सकते हैं. अ सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज फिक्स्ड ऑन द स्लाइड and observed under a microscope.
एमनियोटिक फ्लूइड अपीयर्स एज अ फर्न लाइक पैटर्न, फर्न टेस्ट पॉजिटिव जिसको बोलेंगे. फर्निंग इज एब्सेंट इन वजाइनल फ्लूइड. सर्वाइकल म्यूकस, ओके. इट ऑल्सो शोज अ फर्न लाइक पैटर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन. बट प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस के अंडर तो नहीं होता सर्वाइकल म्यूकस. इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, विच इज द हार्मोन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. एंड प्रोजेस्टेरोन के अंडर जो सर्वाइकल म्यूकस की फर्निंग है वो डिसअपियर कर जाती है. ठीक है. और वजाइनल फ्लूइड तो फर्निंग शो करता ही नहीं, सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड ही फर्निंग शो करता है. ठीक है. सो द फर्निंग इज थिन एंड डेलिकेट इन केस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, बट इफ सर्वाइकल म्यूकस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन शोज थिक फर्निंग. तो सर्वाइकल म्यूकस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की फर्निंग को, कि सर्वाइकल म्यूकस की फर्निंग विल बी थिक एंड इट डिसअपियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन. लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं दो, एक एक्टिम टेस्ट और एक एमनीश्योर. एक्टिम टेस्ट जो होता है ना, इट टेस्ट फॉर प्लेसेंटल प्रोटीन 12 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 1, यानी IGF बाइंडिंग प्रोटीन 1 या फिर प्लेसेंटल प्रोटीन 12. A single line in the slide indicates that the test is negative for amniotic fluid and a double line is indicative of a positive result. ठीक है. तो एक्टिव टेस्ट करने पे अगर सिंगल लाइन आ रही है तो नेगेटिव टेस्ट, दो लाइन आ रही है तो पॉजिटिव. एमनीश्योर इज ऑल्सो टेस्ट फॉर amniotic fluid. It tests for placental alpha microglobulin 1, that is PAMG1. The nitrazine paper test and fern test are outdated tests and are not currently performed clinically. What are the outcomes of premature rupture of membranes? The outcomes are delivery within 1 week is the most common outcome. अगर rupture कर गई है ना membranes तो एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी भी हो जाएगी. Chorioamnionitis is seen in 60% of the cases. More than half of the cases get infected, that is chorioamnionitis. Cord prolapse can happen, malpresentation can happen क्योंकि fluid बाहर चला गया, baby cannot rotate now easily, so malpresent करेगा. Rarely the leaking might stop spontaneously. रिस्क क्या होंगे मेम्ब्रेन रप्चर के? मोस्ट पेशेंट्स डिलीवर विद इन अ वीक. अब अगर 37 हफ्ते से पहले ही रप्चर होगी मेम्ब्रेन्स और अगर 37 हफ्ते से पहले ही डिलीवर होगा बेबी, तो लंग तो इमेच्योर है, तो corticosteroids are given to manage such cases. Tocolytics are added if the steroids are given at less than 34 weeks. It is not required if the gestational age is more than 34 weeks. Tocolytics are not used then. अगर less than 32 weeks है तो risk of cerebral palsy is also there. So magnesium sulfate has also to be added for neuroprotective effects. At any gestational age, there are increased chances of intraamniotic infection, chorioamnionitis infection. So all patients with premature rupture of membranes must be monitored closely for variations in the pulse rate, which are the signs of chorioamnionitis, pulse rate, temperature, or for uterine tenderness. Fetal distress can also happen. Decreased amniotic fluid decreases the uterine space and can lead to cord compression, causing fetal distress. ठीक है. तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से क्या हो सकता है? एक तो डिलीवरी हो सकती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे अगर 32 हफ्ते से पहले होगी, टोकोलिटिक्स देंगे अगर 34 हफ्ते से पहले होगी. ठीक है. और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया. क्यों? क्योंकि कोर्ड कंप्रेशन हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड तो रहा नहीं, जिसके कारण फीटल डिस्ट्रेस होगा. तो फीटल डिस्ट्रेस के लिए हम टेस्ट मॉनिटर करते रहेंगे, फीटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे बाय परफॉर्मिंग द नॉन स्ट्रेस टेस्ट. ठीक है. इन ऑल केसेस ऑफ PROM. And if non-stress test is non-reactive, a biophysical profile and weekly USG is done to ensure proper fetal growth. मैनेज कैसे करेंगे रप्चर में? According to new guidelines, if premature rupture of membranes occurs less than 34 weeks, then we do an expectant management. वेट करते हैं. और अगर 34 to 36 weeks plus 6 days में हो रहा है तो भी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ही करते हैं. पहले क्या करते थे? पहले इंड्यूस कर देते थे लेबर, लेकिन अब ऐसा नहीं करते, अब एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ही करते हैं. और अगर PROM हो रहा है 37 हफ्ते के बाद तो एक्सपेडाइट मैनेजमेंट करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर कर देते हैं, सी सेक्शन नहीं करते. सी सेक्शन इज नॉट डन. सो इफ PPROM occurs less than 34 weeks, expectant. If PPROM occurs 34 to 36 weeks plus 6 days, induction of labor was done earlier. ठीक है, टू प्रिवेंट chorioamnionitis, बट करंटली एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज प्रिफर्ड. ठीक है. एंड देन एक्सपेडाइट मैनेजमेंट. Okay. The preferred mode of delivery in patients of rupture is vaginal delivery, not C-section.
इंडिकेशंस फॉर एक्सपेडाइट मैनेजमेंट, दैट इज इंडक्शन ऑफ लेबर एसोसिएटेड विद कोरियो, अगर कोरियो एमनियोनाइटिस हो गया ना रप्चर के केस में तो डिलीवरी कर देंगे, एक्सपेडाइट मैनेजमेंट कर देंगे, फिर वेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एब्रोप्शियो प्लासेंटा के साथ एसोसिएटेड है रप्चर तो भी डिलीवरी कर देंगे। अगर कोरियो एमनियोनाइटिस हो गया तो, अगर एब्रोप्शियो प्लासेंटा हो गया तो कर देंगे। अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर कैटेगरी 3 कार्डियोटोकोग्राफी सीटीजी ट्रेसिंग्स दिख रही हैं तो डिलीवरी कर देंगे। इफ़ देर इज़ PROM 37 हफ्ते के बाद हो रहा है अगर, ठीक है, रप्चर, तो फिर डिलीवर कर देंगे, फिर वेट क्यों करना। इफ इट इज़ अ केस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर एसोसिएटेड विद हाई चांसेस ऑफ कोर्ड प्रोलैप्स, ठीक है, अगर कोर्ड प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा हैं तो हम डिलीवर कर देते हैं। Even if it is less than 37 weeks, we will have to deliver because there are chances of cord prolapse. तो 37 वीक्स के बाद एक्सपर्टाइट मैनेजमेंट होती है, यानी कि डिलीवर कर देते हैं चाहे कुछ भी हो। फिर 34 से 36 प्लस 6 डेज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, और 34 वीक्स से पहले भी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज डन इफ देयर आर नो इंडिकेशंस ऑफ एक्सपेडाइट मैनेजमेंट, यानी ये कंडीशंस नहीं है, कोड प्रोलैप्स के चांसेस नहीं है, ठीक है, अगर कोरियो एमनियोनाइटिस नहीं है, कैटेगरी 3 कार्डियोटोकोग्राफी ट्रेसिंग्स नहीं है, एब्रोप्शियो प्लासेंटा नहीं है, तो फिर हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं इफ इट इज़ लेस देन 34 वीक्स। वी हैव टू एडमिट द पेशेंट, वी हैव टू गिव अ कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। बट अगर कोरियो एमनियोनाइटिस है फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, फिर तो सीधा एक्सपेडाइट मैनेजमेंट ही कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। शॉर्ट टर्म टोकोलिटिक्स फॉर 48 आवर्स इज एडमिनिस्टर्ड टू बाय टाइम फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू एक्ट। रेक्टोवाजाइनल स्वैब हैज टू बी टेकन फॉर ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई स्क्रीनिंग। Start GBS prophylaxis. The antibiotics are stopped if GBS screening is negative. Maternal monitoring for temperature, uterine tenderness, uterine contractions and fetal movements are done. ठीक है, कोरियो एमनियोनाइटिस को चेक करते रहना है, मतलब कि ना हो। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, NST बायोफिजिकल स्कोर, पीरियडिक अल्ट्रासाउंड करेंगे टू मॉनिटर द फीटल ग्रोथ। अगर प्रीमेच्योर रप्चर हो गया लेस देन 32 वीक्स तो मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड कर देंगे। मैनेजमेंट ऑफ, और ये था लेस देन 34 वीक्स। अगर 34 to 37 वीक्स प्लस 6 डेज है देन वही रहेगी मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट रहेगी, बट टोकोलिटिक्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड, ठीक। और एक्सपेडाइट मैनेजमेंट कर देते हैं अगर इंडिकेशंस हों तो, यानी डिलीवर कर देते हैं अगर इंडिकेशंस हों। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ PROM? द रप्चर अकर्स, मतलब अगर 37 हफ्ते के बाद हो रहा है तो फिर एक्सपेडाइट मैनेजमेंट ही करनी होती है, ठीक है। फीटल लंग्स आर मैच्योर, देयर इज नो रिस्क ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। द स्टेप्स विल बी इंडक्शन ऑफ लेबर। GBS प्रोफाइलैक्सिस देंगे अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होने के बाद अगर 18 घंटे हो गए हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और लेबर नहीं हुआ तो GBS प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं। एंड इफ द GBS स्टेटस इज अननोन अनलाइक इन ऑल पेशेंट्स लाइक इन केस ऑफ PPROM, ठीक है। तो PPROM के हर केस में हम GBS प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी देंगे अगर PPROM होने के 18 घंटे हो गए हैं, लेबर नहीं हुआ है। 37 हफ्ते के बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टोकोलिटिक्स, मैग्नीशियम सल्फेट इनका कोई रोल नहीं है। PROM और PPROM देयर इज एब्सोल्युटली नो रोल फॉर एमनियो इन्फ्यूजन विद नॉर्मल सलाइन। एमनियो इन्फ्यूजन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। कोरियो एमनियोनाइटिस और इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन, अब कोरियो एमनियोनाइटिस पढ़ेंगे। इट इज अ पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। द membranes prevent the infective organisms present in the cervix and vagina from entering. A break in the membrane can result in ascent of the infection leading to chorioamnionitis. A presumptive diagnosis of chorioamnionitis is made based on the clinical symptoms. If a pregnant woman with ruptured membranes present with temperature of more than 39 degrees Celsius on one occasion and more than 38 degrees Celsius on two occasions 30 minutes apart, then we have a presumptive diagnosis of chorioamnionitis. Along with any one of the following findings, ठीक है, फीटल टैकीकार्डिया, फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 बीट्स पर मिनट, कोरियोएमनियोनाइटिस। मैटरनल WBC काउंट ऑफ मोर देन 15,000 सेल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मली WBC काउंट्स इन प्रेग्नेंट फीमेल आर 15,000 अप टू 15,000, बट इफ दे आर मोर देन 15,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर देन इट इज अ इंडिकेशन ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस, मतलब इंडिकेट कर रहा है उसकी तरफ। फीटल टैकीकार्डिया ऑफ मोर देन 160 बीट्स पर मिनट, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द ओस, ठीक है, तो भी कोरियोएमनियोनाइटिस है। ऑल्दो मैटरनल टैकीकार्डिया इज ऑल्सो सीन, यूट्राइन टेंडरनेस इज ऑल्सो सीन इन these also are the features of chorioamnionitis, but they are not included in the diagnostic criteria. If in doubt that whether it is chorioamnionitis or not, then amniotic fluid obtained from the amniocentesis is sent for gram staining and culture.
and membranes can be sent for histopathological examination. Then we can have a confirmed diagnosis if we have a doubt. Then what is the definitive diagnosis of chorioamnionitis? Definitive diagnosis is made when any one of the following features is present along with presumptive diagnosis. तो presumptive diagnosis तो बना लिया हमने based on fever and fetal tachycardia and what else? Purulent discharge, WBC count. लेकिन confirmatory diagnosis के लिए हमें amniotic fluid को ग्राम स्टेन करना पड़ेगा. वो अगर पॉजिटिव है, कल्चर पॉजिटिव है इन्फेक्शन के लिए, amniotic fluid. डिक्रीज ग्लूकोज लेवल है amniotic fluid में और इंक्रीज WBC काउंट है amniotic fluid में, तो हम कोरियोएमनियोनाइटिस का डायग्नोसिस है. अगर साइंस है इन्फ्लेमेशन के और इन्फेक्शन के हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे. व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस? वी हैव टू इंड्यूस लेबर. ठीक है. वेजाइनल डिलीवरी इज प्रिफर्ड इन केसेस ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस. क्यों? क्योंकि अगर सी सेक्शन करते हैं ना तो पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या होंगे? एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन. लेकिन अगर सी सेक्शन करना पड़ गया, सी सेक्शन करना पड़ गया ड्यू टू सम इंडिकेशन ऑब्स्टेट्रिकल रीजंस के कारण, जैसे इनएडिक्वेट और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, फीटल डिस्ट्रेस है, उसके कारण हमने अगर सी सेक्शन करना पड़ गया और कोरियोएमनियोनाइटिस था पेशेंट को, तो हम एम्पेसिलिन जेंटामाइसिन तो देंगे ही, साथ में मेट्रोनिडाजोल भी ऐड कर देंगे. ठीक है, टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस. वी हैव टू एंटीबायोटिक स्टॉप कब करेंगे? स्टॉप करेंगे अगर वेजाइनल डिलीवरी करी है तो इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे डिलीवरी होते ही, उसके बाद कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोरियन एमनियन बाहर चले गए, अब क्या रोल होगा. लेकिन अगर सी सेक्शन करा है तो क्योंकि वूंड है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस होने के चांसेस हैं, तो वी वोंट स्टॉप द एंटीबायोटिक्स राइट आफ्टर द डिलीवरी. वी विल स्टॉप देम आफ्टर द पेशेंट बिकम्स afebrile or asymptomatic for at least 24 hours. In chorioamnionitis, there is no role for expectant management, only expedite management, delivery. Corticosteroids and procolytics का भी कोई रोल नहीं है. C-section is performed only for obstetrical reasons in a patient of chorioamnionitis. What are the complications of chorioamnionitis? The complications include sepsis हो सकता है, postpartum endometritis हो सकता है अगर C-section कर दिया, septic pelvic vein thrombophlebitis हो सकता है, वेन की इन्फ्लेमेशन, septic pelvic vein thrombophlebitis. अब नॉर्मल लेबर हो सकता है और एटोनिक PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकती है. एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स.